کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ذہن نے ایک بہت ہی زبردست ایک ریولوشنری یعنی انقلابی آئیڈیا ہو؟ ایک ایسا خیال جو آپ کی کمپنی کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کی ٹیم کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے، یا شاید آپ کی اپنی زندگی کا کوئی بہت بڑا مسئلہ حل کر سکتا ہو۔ آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ بس جیسے ہی آپ یہ آئیڈیا کسی کو بتائیں گے وہ فوراً سمجھ جائے گا، آپ کی تعریفوں کے پال باندھ دے گا اور کہے گا، واہ کیا بات ہے، یہ خیال تمہیں پہلے کیوں نہیں آیا؟ آپ پوری ہمت جمع کر کے اپنے باس، اپنے کلائنٹ، اپنے دوستوں کے سامنے وہ آئیڈیا پیش کرتے ہیں۔ آپ بولتے ہیں، بولتے جاتے ہیں، ایک ایک تفصیل بتاتے ہیں، پس منظر سمجھاتے ہیں، اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنی بات ختم کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے لوگوں کے چہروں پر تعریف کے تاثرات کے بجائے ایک خاموش سی الجھن ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ کی طرف، اور پھر کوئی کہتا ہے، اچھا تو آپ کا اصل پوائنٹ کیا ہے؟ اور اس ایک لمحے میں آپ کا سارا جوش، ساری توانائی، سارا اعتماد چکنا چاور ہو جاتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کا آئیڈیا ہی بیکار تھا، شاید آپ میں ہی کوئی کمی ہے، آپ اپنی بات سمجھا ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ اسٹیو جابز جیسے لوگ کیسے اپنی بات اتنے سادہ اور طاقتور انداز میں کہہ دیتے تھے کہ دنیا ان کی دیوانی ہو جاتی تھی۔ وہ کون سا جادو استعمال کرتے تھے؟ آپ کے پاس بھی تو اچھے خیالات ہیں، پھر آپ کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ یہ احساس، یہ ناکامی کا احساس بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اور آپ اگلی بار کچھ بھی کہنے سے ڈرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ مسئلہ آپ کے آئیڈیا میں نہیں تھا، مسئلہ آپ میں بھی نہیں تھا، مسئلہ تھا آپ کے بات کرنے کے طریقے میں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگ بڑی بڑی کمپنیوں کے مکنزی اور بوسٹن کنسلٹنگ گروپ جیسی دنیا کی ٹاپ کنسلٹنگ فرمز کے ماہرین ایک ایسا خفیہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں جو ان کے عام سے نظر آنے والے خیالات کو بھی غیر معمولی بنا دیتا ہے، ایک ایسا طریقہ جو آپ کی ہر بات کو اتنا واضح، اتنا طاقتور اور اتنا قائل کرنے والا بنا سکتا ہے کہ کوئی آپ کی بات کو نظر انداز کر ہی نہ پائے۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی تکنیک ہے جو اگر آپ نے سیکھ لی تو آپ کے الفاظ میں وہ وزن اور آپ کی شخصیت میں وہ اعتماد آ جائے گا جس کا آپ نے صرف خواب دیکھا ہوگا۔ آج میں آپ کو وہی راز بتانے والی ہوں، ایک ایسا اصول جو آپ کے سوچنے اور بات کرنے کے انداز کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اسے کہتے ہیں دی پیرامڈ پرنسپل۔ یہ اصول باربرا منٹو نامی ایک ذہین خاتون نے بنایا تھا جو مکنزی کمپنی کی پہلی خاتون کنسلٹنٹ تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ذہین لوگ بھی اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں پہنچا پاتے۔ وہ خیالات کے جنگل میں خود بھی کھو جاتے ہیں اور اپنے سننے والوں کو بھی گم کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس مسئلے کا ایک بہت ہی خوبصورت اور سادہ حل نکالا، ایک ایسا حل جو انسانی دماغ کے کام کرنے کے طریقے پر مبنی ہے۔ باربرا منٹو کہتی ہیں کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں، کوئی پریزنٹیشن دیں، کوئی ای میل لکھیں یا کوئی رپورٹ تیار کریں، تو اپنی بات کو ایک پیرامڈ کی شکل میں ترتیب دیں۔ پیرامڈ کیسا ہوتا ہے؟ اوپر سے نوکیلا اور نیچے سے چوڑا۔ بس یہی آپ کے خیالات کی ساخت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے، سب سے پہلے نتیجہ بتائیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ سب سے پہلے اپنی بات کا نچوڑ، سب سے اہم پیغام، اپنی ریکمنڈیشن یعنی تجویز پیش کریں۔ وہ ایک جملہ جس کے لیے آپ نے یہ ساری گفتگو شروع کی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس کے بالکل الفالٹ کرتے ہیں۔ ہم کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں، پہلے پس منظر بتاتے ہیں، پھر تفصیلات، پھر ہم نے کیا تجزیہ کیا وہ بتاتے ہیں، اور بہت آخر میں جا کر اپنی اصل بات، اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تب تک سننے والے کا دماغ تھک چکا ہوتا ہے، اس کی توجہ بھٹک چکی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آدھی بات سن کر ہی کوئی اور کام کرنے لگ گیا ہو۔ سوچئے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کے بہت سارے ٹیسٹ کرتا ہے۔ پھر جب آپ رپورٹ لینے جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم نے آپ کا خون ٹیسٹ کیا، اس میں شوگر کا لیول یہ تھا، پھر ہم نے آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، وہ اتنا نکلا، پھر ہم نے آپ کا ایکس رے کیا۔ نہیں، وہ سیدھا کہتا ہے، مبارک ہو، اب بالکل ٹھیک ہے، آپ کو یہ مسئلہ ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو وہ جواب دیتا ہے جس کے لیے آپ وہاں گئے ہیں۔ باقی تفصیلات وہ بعد میں بتاتا ہے اگر آپ پوچھیں۔ یہی پیرامڈ کا اصول ہے۔ اسٹارٹ وتھ دا آنسر فرسٹ، یعنی جواب سے شروعات کریں۔ جب آپ ایسا کرتے ہیں تو دو کمال کی چیزیں ہوتی ہیں۔
नंबर 1, आप सुनने वाले के जहन को फौरन पकड़ लेते हैं। इसके दिमाग में सबसे अहम सवाल ये होता है कि वो आखिर मुद्दा क्या है। जब आप इसे वो मुद्दा पहली ही लाइनें बता देते हैं तो इसका दिमाग पुरसुकून हो जाता है। अब वो आपकी बाकी बातें सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि अब इसे मालूम है कि आप जो भी तफसीलात बताएंगे वो इसी मरकजी ख्याल को सपोर्ट करने के लिए होंगी। इसे एक फ्रेम वर्क मिल जाता है जिसमें वो आपकी मालूमात को फुट कर सकता है। नंबर 2, आप सुनने वाले के वक्त की इज्जत करते हैं। आज की तेज़ रफ्तार दुनिया में किसी के पास लंबी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है। जब आप टू दी पॉइंट बात करते हैं तो लोग आपको एक ज़हीन और मौसर कम्युनिकेटर के तौर पर देखते हैं। वो जानते हैं कि आप उनका वक्त ज़ाय नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो ठीक है, लेकिन अपनी बात को एक जुमले में समेटना कैसे है और उसके बाद क्या करना है? यहीं पर पिरामिड का बाकी ढांचा काम आता है। आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन यानी आपका मरकजी पैगाम आपके पिरामिड की चोटी है। इस चोटी के नीचे आपकी दलीलों की अगली तह आती है। ये तह आम तौर पर 3 या 4 अहम निकात पर मुश्तमिल होती है जो आपके मरकजी पैगाम की वजाहत करते हैं या इसे साबित करते हैं। ये वो सुतून हैं जिन पर आपकी मरकजी इमारत खड़ी है, और हर सुतून के नीचे इसकी अपनी बुनियाद होती है जिसमें सबूत, मिसालें, डेटा और मज़ीद तफसीलात होती है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप अपनी कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं और आपको कंपनी के सीईओ को बताना है कि हमें एक नई मोबाइल ऐप लॉन्च करनी चाहिए। पुराने तरीके से आप शायद ऐसे शुरू करते, जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल हमारी सेल्स फ्लैट रही है। हमने मार्केट का तज्जिया किया तो पता चला कि हमारे हरीफ डिजिटल मार्केटिंग पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने एक सर्वे भी किया जिसमें 70% सारिफीन ने कहा कि वो हमारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन खरीदना पसंद करेंगे। ये सुनते सुनते सीईओ शायद बूर हो जाएगा, इसका ध्यान कहीं और चला जाएगा। अब पिरामिड के उसूल के मुताबिक बात करते हैं। अब मीटिंग शुरू होते ही कहेंगे, जनाब, मेरा मशवरा है कि हमें अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए अगले 6 माह में एक मोबाइल शॉपिंग ऐप लॉन्च करनी चाहिए। यह है पिरामिड की चोटी, एकदम वाज़े, सीधा और टू दी पॉइंट। सीईओ फौरन मुतवज्जे हो जाएगा। अब उसके ज़हन में सवालात आएंगे, क्यों, कैसे? अब आप पिरामिड की अगली तह पेश करेंगे। आप कहेंगे, मैं ऐसा 3 बड़ी वजूहात की बना पर कह रहा हूँ। पहली वजह, हमारे सारिफीन अब मोबाइल पर खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। दूसरी वजह, हमारे सबसे बड़े हरीफ अपनी ऐप से बहुत ज़्यादा बिजनेस हासिल कर रहे हैं। और तीसरी वजह, हमारी अपनी रिसर्च बताती है कि एक ऐप हमारी ब्रांड की वफादारी को बढ़ा सकती है। देखा आपने, अपने अपने एक बड़े ख्याल को 3 छोटे काबिले हज़म हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब सीईओ के लिए आपकी पूरी दलील को समझना बहुत आसान हो गया है। वो चाहे तो उन्हें से किसी भी एक नुक्ते पर मज़ीद तफसील मांग सकता है। मसलन वो कह सकता है, अच्छा, मुझे पहली वजह के बारे में मज़ीद बताओ। तब आप पिरामिड की सबसे निचली तह पर आएंगे और इस नुक्ते से मुताल्लिक डेटा, सर्वे के नताइज और सबूत पेश करेंगे। इस तरह आप पूरी गुफ्तगू को कंट्रोल करते हैं। आप सुनने वाले को उलझती नहीं बल्कि इसकी रहनुमाई करते हैं। आप उसके ज़हन में ख़यालात का एक साफ सुथरा नक्शा बनाते हैं। इस उसूल की खूबसूरती यह है कि यह सिर्फ बिजनेस प्रेजेंटेशंस तक महदूद नहीं है। आप इसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने दोस्त को किसी सफ़र पर जाने के लिए कायल करना है। सीधा कहीं, चलो इस हफ्ते मरी चलते हैं, फिर वजूहात बताएं, मौसम अच्छा है, छुट्टियां हैं और थोड़ा वक्फा हम सब के लिए अच्छा रहेगा। आपको अपने वालिदैन को किसी करियर के इंतखाब के लिए राज़ी करना है। पहले बताएं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, फिर उसकी वजूहात पेश करें, इसमें मुस्तकबिल है, मुझे इस काम में दिलचस्पी है और उससे अच्छी आमदनी हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये जान लेना काफ़ी नहीं कि पिरामिड बनाना है। एक अच्छा और मजबूत पिरामिड बनाने के भी कुछ उसूल हैं। बारबरा मंटो ने इसके लिए कुछ कवानीन वज़ा किए हैं। पहला उसूल यह है कि पिरामिड में एक ही सतह पर मौजूद तमाम आइडियाज़ एक ही किस्म के होने चाहिए। यानी अगर आप वजूहात बता रहे हैं तो सारे निकात वजूहात ही हो। ऐसा ना हो कि एक नुक्ता वजह हो, दूसरा नुक्ता एक मसला हो और तीसरा नुक्ता कोई हल हो। जैसे हमारी ऐप वाली मिसाल में तीनों निकात और वजूहात उठे। इससे आपकी दलील में एक मंतिकी रब्त पैदा होता है। दूसरा उसूल यह है कि हर ग्रुप के आइडियाज़ में एक मंतिकी तरतीब होनी चाहिए। ये तरतीब वक्त के हिसाब से हो सकती है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम,
साख्त के हिसाब से हो सकती है, शोबा अलिफ शोबा बे शोबा जीम, अहमियत के हिसाब से हो सकती है, सबसे अहम वजह, दूसरी अहम वजह, तीसरी अहम वजह। इस तरतीब से सुनने वाले को आपकी बात याद रखने में आसानी होती है। इसका दिमाग खुद ब खुद एक पैटर्न बना लेता है। और ये सब करने से पहले यानी अपनी बात का पिरामिड बनाने से पहले एक बहुत अहम काम करना होता है। वो है अपने सामेईन को समझना और उनके जहन में चलने वाले सवाल का अंदाज़ा लगाना। बारबरा मंटो उसके लिए एक और बहुत ताकतवर फ्रेमवर्क देती है जिसे कहते हैं SCQA। इसका मतलब है सिचुएशन यानी सूरत हाल। ये वो पस मंज़र है जिससे आप और आपके सामेईन दोनों वाकिफ़ हैं। ये एक गैर मुतनाज़ा हकीकत होती है। मसलन, हमारी कंपनी पिछले 5 साल से हर साल 20% की शरह से तरक्की कर रही है। सी का मतलब है कॉम्प्लिकेशन यानी पेचीदगी। ये वो वाक़या तब्दीली है जिसने सूरत हाल को ख़राब कर दिया है या एक चैलेंज पैदा कर दिया है। ये वो तो फिर क्या हुआ वाला हिस्सा है। मसलन, लेकिन इस साल हमारी तरक्की सिर्फ 5% रह गई है। क्यू का मतलब है क्वेश्चन यानी सवाल। जब सूरत हाल और पेचीदगी आपस में टकराते हैं तो सुनने वाले के ज़हन में कुदरती तौर पर एक सवाल पैदा होता है। आपका काम इस सवाल को पहचानना है। मसलन, अब हमें अपनी तरक्की की शरह को वापस 20% पर लाने के लिए क्या करना चाहिए? और आखिर में है ए यानी आंसर यानी जवाब। और ये जवाब ही आपके पिरामिड की चोटी है, आपका मरकज़ी पैगाम। मसलन, हमें अपनी तरक्की की शरह को वापस लाने के लिए 3 नई मार्केटों में दाखिल होना चाहिए। जब आप अपनी बात को इस ढांचे में सोचते हैं तो आपकी कहानी खुद ब खुद बन जाती है। आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक ऐसी बुनियाद से करते हैं जिस पर सब मुत्तफ़िक हों, सिचुएशन, फिर आप एक मसला चैलेंज पेश करते हैं जो सबकी तवज्जो खींच लेता है, कॉम्प्लिकेशन। इससे एक फितरी सवाल पैदा होता है, क्वेश्चन, और फिर आप इस सवाल का एक वाज़े और ताकतवर जवाब देते हैं, आंसर। ये एक मुकम्मल और इत्मीनान बख्श कहानी की तरह महसूस होता है। ये आपके सामेईन को शुरू से आखिर तक आपके साथ जुड़े रखता है। ये उन्हें महसूस कराता है कि आप सिर्फ ख़यालात का ढेर नहीं लगा रहे बल्कि अपने वाकई सूरत हाल को समझा है और एक सोचा समझा हल पेश कर रहे हैं। इस तकनीक में महारत हासिल करने में वक्त लगता है। इसके लिए मश्क की ज़रूरत होती है। आपको अपनी हर अहम गुफ्तगू, हर ईमेल, हर प्रेजेंटेशन से पहले रुक कर सोचना होगा, मेरे सामेईन कौन है? उनके ज़हन में क्या सवाल है? मेरी बात का मरकज़ी नुक्ता क्या है? और मैं इस नुक्ते को सपोर्ट करने के लिए कौन से 3 या 4 मजबूत दलाइल दे सकता हूँ? शुरू में यह मुश्किल लगेगा क्योंकि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर तफसीलात में भटकने का आदी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पर अमल करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके ख़यालात में खुद ब खुद एक सफाई और वजाहत आती जा रही है। आप कम अल्फाज में ज़्यादा बात करने के काबिल हो जाएंगे। आपकी मीटिंग्स छूटी और ज़्यादा नतीजा खेज हो जाएंगी। लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि समझेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ये आपके करियर और आपकी ज़िंदगी में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो अब तक हमने ये समझा कि पिरामिड का उसूल क्या है और ये क्यों इतना ताकतवर है। हमने सीखा कि अपनी बात हमेशा जवाब से शुरू करनी चाहिए और फिर इस जवाब को सपोर्ट करने के लिए मंतिकी ग्रुपों में अपने दलाइल पेश करने चाहिए। हमने फ्रेमवर्क को भी जाना जो हमें अपनी बात के लिए एक ज़बरदस्त तारुफ तैयार करने में मदद देता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अमली तौर पर यह पिरामिड बनाया कैसे जाए, ख़ास तौर पर जब आपके पास बहुत सारी मालूमात, बहुत सारा डेटा और बहुत सारे ख़यालात हों जो आपके दिमाग में एक शोर की तरह गूंज रहे हों। आप इस शोर को एक खूबसूरत और मुनज़्ज़म पिरामिड में कैसे तब्दील कर सकते हैं? इसका तरीक़ा यह है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ सोचने के बजाय नीचे से ऊपर की तरफ काम करें। यानी पहले अपने तमाम ख़यालात, तमाम डेटा पॉइंट्स, तमाम मालूमात जो आपके पास हैं उन्हें बग़ैर किसी तरतीब के एक कागज़ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर लिख लें। ये आपका खाम माल है। इसे ब्रेन डंप यानी दिमाग को खाली करना भी कहते हैं। इस मरहले पर सही या गलत, अहम या गैर अहम के बारे में मत सोचें। बस जो कुछ भी आपके ज़हन में है इसे बाहर निकाल दें। जब आपके सामने ये तमाम ख़यालात का मजमुआ आ जाए तो अगला कदम है उनके दरमियान ताल्लुकात तलाश करना। आपको उन आइडियाज़ के ग्रुप बनाने होंगे। देखें कि कौन से ख़यालात एक जैसे हैं या एक दूसरे से मंतिकी तौर पर जुड़े हुए हैं।
मिसाल के तौर पर आपको शायद कुछ आइडियाज़ मिलें जो किसी मसले की वजूहात बता रहे हों, कुछ आइडियाज़ इस मसले के असरात बता रहे हों और कुछ आइडियाज़ इस मसले के मुमकिना हल पेश कर रहे हों। आप उनके 3 अलग अलग ग्रुप बना लेंगे: वजूहात, असरात और हल। ये ग्रुपिंग का अमल बहुत अहम है। ये ऐसा ही है जैसे एक बावर्ची खाना पकाने से पहले अपनी तमाम सब्जियों को काट कर अलग अलग प्यालों में रख लेता है। इससे काम में बहुत आसानी हो जाती है। जब आप अपने आइडियाज़ को इस तरह ग्रुपों में तकसीम कर लें तो अब हर ग्रुप के लिए एक खुलासा जुमला लिखें। एक ऐसा जुमला जो इस ग्रुप के तमाम आइडियाज़ का निचोड़ बयान करे। मिसाल के तौर पर अगर आपके एक ग्रुप में ये आइडियाज़ हैं: हमारी वेबसाइट पर सारिफीन ज़्यादा देर नहीं रुकते, सारिफीन को अपनी पसंद की चीज़ ढूंढने में मुश्किल होती है और बहुत से लोग खरीदारी का अमल बीच में ही छोड़ देते हैं, तो इस पूरे ग्रुप का खुलासा जुमला ये हो सकता है: हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन सारिफ दोस्त नहीं है। ये खुलासा जुमला अब आपके पिरामिड की दूसरी तह का एक सतून बन गया है। इसी तरह आप अपने हर ग्रुप के लिए एक एक खुलासा जुमला बनाएंगे। अब आपके पास 3 मजबूत खुलासा जुमले होंगे। ये आपकी मरकजी दलील के सतून हैं। अब आखिरी और सबसे अहम कदम उठाएं। उन तमाम खुलासा जुमलों को देखें और खुद से पूछें, ये सब मिलकर मुझे किस एक बड़े नतीजे की तरफ ले जा रहे हैं? उन सब का मजमूई पैगाम क्या है? इस सवाल का जो जवाब होगा वही आपके पिरामिड की चोटी होगा, वही आपका मरकजी पैगाम होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके खुलासा जुमले ये हैं: हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन सारिफ दोस्त नहीं है, हमारे हरीफ बेहतर ऑनलाइन तजर्बा फराहम कर रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग पर हमारा खर्च बहुत कम है, तो उन सब का मजमूई नतीजा ये हो सकता है: हमें अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर सरमायाकारी करनी चाहिए। और लीजिए, आपका पिरामिड तैयार है। अपने ख़यालात के एक बेतरतीब ढेर से एक वाज़ेह, मंतिकी और कायल करने वाली दलील तख्लीक कर ली है। अब जब आप अपनी बात पेश करेंगे तो आप इसी पिरामिड की साख्त पर अमल करेंगे। आप ऊपर से शुरू करेंगे: हमें अपनी ऑनलाइन मौजूदगी को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर सरमायाकारी करनी चाहिए। फिर आप नीचे आएंगे: इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन; दूसरी, हमारे हरीफ; और तीसरी, हमारी मार्केटिंग। और फिर ज़रूरत पड़ने पर आप हर वजह की मज़ीद तफसीलात में जाएंगे। इस पूरे अमल में एक और गहरी बात छपी है। वो है सोचने के 2 मुख्तलिफ अंदाज: डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। ये नाम सुनने में शायद कुछ टेक्निकल लगे, लेकिन उनका तसव्वुर बहुत सादा है। डिडक्टिव रीजनिंग यानी इस्तिखराजी इस्तिदलाल एक जंजीर की तरह होता है। इसमें एक बात दूसरी बात की तरफ ले जाती है और दूसरी तीसरी की तरफ। जैसे, तमाम इंसान फ़ानी हैं। सुकरात एक इंसान है, इसलिए सुकरात फ़ानी है। ये एक बहुत ही मंतिकी तरीका है, लेकिन मसला यह है कि अगर आपकी जंजीर लंबी हो जाए तो सुनने वाला बीच में ही खो सकता है। वो भूल सकता है कि बात शुरू कहाँ से हुई थी। दूसरी तरफ है इंडक्टिव रीजनिंग यानी इस्तिक़राई इस्तिदलाल। इसमें आप बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ा नतीजा निकालते हैं। आप मुख्तलिफ मिसालों और मुशाहदात को एक ग्रुप में रखते हैं और कहते हैं कि चूंकि ये सब चीज़ें एक जैसी हैं, इसलिए उनका मजमूई मतलब ये है। जैसे, मैंने एक कौवा देखा, वो काला था। मैंने दूसरा कौवा देखा, वो भी काला था। मैंने जितने भी कौवे देखे वो सब काले थे, इसलिए मैं ये नतीजा निकाल सकता हूं कि तमाम कौवे काले होते हैं। पिरामिड का उसूल ज़्यादातर इंडक्टिव रीजनिंग पर इन्हिसार करता है। आपके निचली सतह के आइडियाज़ वो काले कौवे हैं और आपका ऊपरी सतह का खुलासा जुमला वो नतीजा है कि तमाम कौवे काले हैं। ये तरीक़ा इंसानी दिमाग के लिए समझना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा दिमाग कुदरती तौर पर चीज़ों को ग्रुपों में तकसीम करके और पैटर्न बनाकर ही सीखता है। जब आप अपनी दलीलों को ग्रुप करते हैं तो आप असल में अपने सामेईन के दिमाग का काम आसान कर रहे होते हैं। आप उन्हें मालूमात के छोटे छोटे काबिले इंतज़ाम टुकड़े दे रहे होते हैं जिन्हें वो आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आप उन्हें मजबूर कर रहे होते हैं कि वो आपकी सोच के रास्ते पर चलीं, भटकी नहीं। याद रखिए, ये सिर्फ एक तकनीक नहीं है, ये एक ज़हनियत है। ये अपने ख़यालात के बारे में बेरहम होने की ज़हनियत है। ये हर गैर ज़रूरी लफ्ज़, हर गैर मुताल्लिक़ा तफसील को काट कर सिर्फ काम की बात पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़हनियत है। इसके लिए हिम्मत चाहिए। अपनी मेहनत से जमा की गई तमाम मालूमात को छोड़कर सिर्फ सबसे अहम निकात को पेश करने के लिए एतमाद चाहिए।
लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अल्फाज में एक ताकत आ जाती है जो लंबी चौड़ी तकरीरों में कभी नहीं आ सकती। ये उसूल आपकी ज़िंदगी के हर पहलू को बदल सकता है। नौकरी के इंटरव्यू में जब आपसे पूछा जाए कि हम आपको क्यों मुंतखब करें, तो अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के बजाय पिरामिड का इस्तेमाल करें। सीधा जवाब दें, आपको मुझे इसलिए मुंतखब करना चाहिए क्योंकि मैं इस रूल के लिए दरकार 3 अहम तरीन सलाहियतें रखता हूँ: तजर्बा, मसला हल करने की महारत और सीखने का जज्बा। फिर एक एक करके इन तीनों को साबित करें। देखिएगा कि इंटरव्यू लेने वाले पर कितना गहरा असर पड़ता है। जब आपको अपने बॉस को एक मुश्किल ईमेल लिखनी हो तो लंबी तमहीद बांधने के बजाय पहली लाइन में ही अपना मुद्दा बयान कर दे। सब्जेक्ट: प्रोजेक्ट एक्स की डेडलाइन ने तौसी की दरख्वास्त, और फिर नीचे मुख्तसर तौर पर वजूहात बता दें। आपको जवाब भी जल्दी मिलेगा और आपका पैगाम भी वाज़ेह तौर पर पहुंचेगा। यहाँ तक कि ज़ाती ताल्लुकात में भी ये उसूल बहुत काम आता है। जब आपको किसी अहम मसले पर अपने साथी से बात करनी हो तो घुमा फिरा कर बात करने के बजाय मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी असल बात को शुरू में ही वाज़ेह कर दे। इससे गलतफहमियां कम होती हैं और बातचीत ज़्यादा तमीरी होती है। आज की दुनिया मालूमात के शोर से भरी पड़ी है। हर कोई बोल रहा है, हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। इस शोर में अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी जाए तो आपको चीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको वाज़ेह होने की ज़रूरत है। आपको अपने ख़यालात को इस तरह पेश करने की ज़रूरत है कि वो सुनने वाले के ज़हन में तीर की तरह उतर जाएं। पिरामिड का उसूल आपको यही सिखाता है। ये आपको अपने ख़यालात का मालिक बनाता है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने ज़हन के अंदर चलने वाले तूफ़ान को पुरसुकून, साफ़ और ताकतवर लफ्ज़ों में ढाला जाए। ये सफ़र आसान नहीं होगा। आपको अपनी पुरानी आदतों से लड़ना पड़ेगा। आपको बार बार मश्क करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपने इस उसूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो आप सिर्फ़ एक बेहतर कम्युनिकेटर नहीं बनेंगे, आप एक बेहतर सोचने वाले बनेंगे। आप मसाइल को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर देख सकेंगे, आप हल ज़्यादा तेज़ी से तलाश कर सकेंगे, और सबसे बढ़कर आप अपने आप पर एक नया एतमाद महसूस करेंगे। एक ऐसा एतमाद जो इस इल्म से आता है कि आपके पास दुनिया का कोई भी पेचीदा ख्याल हो, आप इसे इतनी सादगी और खूबसूरती से पेश कर सकते हैं कि कोई भी इसे समझ सके। तो आज से ही इस पर काम शुरू करें। अपनी अगली गुफ्तगू, अपनी अगली ईमेल को एक मौका समझें। कागज़ और कलम उठाएं और अपनी बात का पिरामिड बनाएं। जवाब से शुरू करें, अपनी दलीलों को ग्रुप करें, और फिर देखें कि कैसे आपके अल्फाज में एक नई जान, एक नई ताकत और एक नया जादू आ जाता है। ये वो फ़िन है जो लीडरों को आम लोगों से अलग करता है। ये अपने अल्फाज से दुनिया को अपनी बात पर कायल करने का फ़िन है, और ये फ़िन अब आपके हाथ में है। इस दुनिया को आपके ख़यालात की ज़रूरत है। उन्हें ज़ाय मत होने दें। उन्हें एक ऐसी आवाज़ दें जो सुनी जाए, समझी जाए और जिस पर अमल किया जाए। अपने अंदर के लीडर को जगाएं, क्योंकि आपके अल्फाज में दुनिया को बदलने की ताकत है।